47 आयोग खोल दिया उस प्रेजेंस में। What is the matter? इसमें 4-5 केस लगे नहीं मालूम। जो 47 की जो है वो एप्लीकेशन जो 482 लगाई है मालूम, वो केवल इतना भरे कि इनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, इनका कहना ऐसा है। सप्लीमेंट्री चार्ज। चार्जशीट फाइल हो गई है मालूम। एक मिनट। सीरियल नंबर 47 एमसीआरसी What was the query? मतलब इसमें कि इनकी चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं हुई है, इस पर्पस और केस डायरी जमानी है कि इनको। यस, क्या नाम है आपका? निरीक्षक आशुतोष सिंह राठौर। तो आपने इनके पहले क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफिस को? सर मैं लगातार मिल रहा हूँ कि 24 मई से मिल रहा हूँ सर इसमें। देखिए इसमें पिछली ऑर्डर शीट देखिए, क्या लिखा है उसमें? Council appearing for the state submit that he has already tried to contact SHO of the concerned police station. However, there is no response from the said police station. क्यों भाई? आप लोग उचित नहीं समझते? सरकारी वकील साहब के ऑफिस का फोन अगर आए तो उसको रिप्लाई देना। 24 मई से कॉन्टेक्ट में उनसे लगातार हूँ, और 24 अगस्त को मैंने डायरी इसमें सबमिट कर दी थी, हमारी कॉपी दे देंगे। 24 अगस्त को फाइल कर दिया था। क्या कहना? इसमें क्वेरी जो थी उस पर्पस में वो था, मतलब डायरी आ गई थी, लेकिन क्वेरी इसमें ये की गई थी कि चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं हुई। वो आपने पूछा था इनसे? यस, वो इनका मिसकम्युनिकेशन हुआ था मानो इनसे भी जो मेरी बात हुई, तो इस कारण तो क्या कहना है आपको? हाँ वो कोई चार्जशीट फाइल हो गई। तो किसकी ग्रीवांस है कि चार्जशीट फाइल नहीं होगी? But this is my grievance, my lord. In the case of Amit Joshi, my lord, in this matter, the honorable court has directed them to file the supplementary charge sheet within 33 months, my lord, which is on page number 40, my lord. And today they are stating that they have filed this charge sheet against me, my lord. If they are stating that this thing before the court, my lord, इस सवाल then I have no objection. तो आपके केस में फाइल हो गई है ना? ऐसा इनका स्टेटमेंट है, my lord. कब फाइल हुई, तारीख बताइए। 15/4/2022 को ना 12/7/2022 को। 12/7/22 को फाइल हो गई ऑलरेडी? आपको पता नहीं है? My lord, if my lord may kindly peruse the FIR itself, my lord. FIR के प्रतिवेदन में था, my lord, कि 173(8) में सप्लीमेंट्री चार्जशीट ओपन रहेगी without disclosing the name of the any single accused, my lord. And my lord, they are, नहीं, वो एफआईआर कब की है? my lord, FIR is registered on 15/4/2022, my lord. Thereafter, 15/4/22। yes, your lordship, and we are facing the trial, my lord. And we are even cross-examining the 5 witnesses before the trial court, my lord. Meanwhile, they have contacted the present applicant, or they are contacting the applicant and call him in Thana, my lord, on various occasions. That is the reason we have filed this application before this court, my lord, to file the supplementary charge sheet, if any, required against the present applicant, my lord. And इसलिए मेरा रिलीफ भी उसमें इतना सही था कि ये 3 महीने में मेरे अगेंस्ट में अगर कुछ है तो फाइल कर दे, my lord, बस। तो आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर दी? नहीं करा, वो अभी नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का कोई वो है ही नहीं, मतलब क्योंकि पहले नहीं, आपने ओपन रखा है ना, इन्वेस्टिगेशन ओपन रखा है। किसके खिलाफ ओपन रखा? 5 एक्यूज जैसे और इसमें से तो कितने के खिलाफ फाइल हुई चार्जशीट? और 16 के अगेंस्ट में हुई। उसमें अमित जोशी के अगेंस्ट में हो चुका है पहले। तो इनके खिलाफ और कुछ नहीं बचता है? नहीं बचता है। आपकी रिलीफ क्या है? My lord, to file the supplementary charge sheet within 3 months, my lord. नहीं, यू कैन नॉट कंपेल देम। Certainly, my lord, but my lord, मेरा एक ही जो मेरा grievance था वो ये था कि I have been called by the officers at that time, my lord. So I approached this honorable court. If अभी there थोड़ी is बुला रहे हैं आपको। no, my lord, अभी जब after filing of this petition, my lord, I'm, and even I have cross-examined the witnesses also, my lord, from day to day, my lord. Will say this petition has been filed by seeking the following relief. The grievance of the petitioner is that although the charge sheet has already been filed against it, but as the investigation was kept open, the charge sheet, the supplementary charge sheet was not filed. Also, for the state submit that the
that so far as the charge sheet against the petitioner is concerned, the same has already been filed. And the presence is also not required at the police station for the further investigation. In view of the same, no case or appearance at this stage is made out. Accordingly, the petition stand dismissed. And the ऊपर लिखे counsel for the petitioner has also submitted that the petitioner has already examined the 5 witnesses. Yes, Your Lordship. No case is made out, dismissed. इनका नाम क्या है? निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर। राजपाल सिंह राठौर and इंस्पेक्टर प्रवीण यादव is present in person in compliance with the order passed by this court on the last date of hearing. Their presence henceforth is not required. और इसमें बाकी क्या है? 47.1 and 2. This is criminal provision against rejection of custody of property loss. This is clause submitted by to stop trading company and both of these petitioners are complainants in the case. Okay, 161 की Arshad Almas and Veena. इन दोनों के 161 statements भी recorded in the charge sheet. So what property you are seeking back? I know it is the cash amount of 30,70,000 30,70,000. from Arshad and 6,60,000 from Veena. 6 lakhs. 60,000. So you are the complainant. One of the complainant. 161 में इनके स्टेटमेंट हुए हैं। तो इनसे पैसा क्यों लिया आपने? इससे पैसा नहीं लिया मैंने। इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इनके साथ फ्रॉड हुआ है सर। डेबिट हुए हैं सर वेरियस बैंक। मतलब इनका कहना ये है कि जो So that amount has been seized. नो मतलब पूरा अमाउंट सीज नहीं हुआ है, केवल टोटल 22 लाख रुपए कुछ 36 लाख रुपए से सीज हुए मैंने। इसमें टोटल यूज अमाउंट है टोटल जो वो है अमाउंट वो ज्यादा है अमाउंट, और इनका कहना है कि हमारा 30 लाख रुपए हमको दे दीजिए और 6 लाख रुपए उनका ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है मैंने, तो ट्रायल चलेगी उसके बाद डिसाइड होगा मैंने। तो यार पैसा कहाँ रखा हुआ है? ये अभी इसमें माल खाने में मतलब कैश जब्त हुआ है? केस हो तो उसको एफडी में डालिए ना भाई, कहाँ जबरदस्ती में? तो इसको डाल दिया तो कुछ शेष है कि बाद में होगा तो वो नहीं हो पाया तो हम कम से कम इंटरेस्ट आएगा तो जो जिनको मिलना होगा तो प्रॉपर तो मिल जाए पूरा पैसा उनका। और जब कब किया आपने? 22 का मामला, ये 2 साल तो वैसे ही होगा। 19 of April 2022 को ये बहुत सारी अक्यूज से अलग अलग जब्ती में और ये एफडी कब हुई? इसमें एफडी एफडी नहीं हुई नहीं है। इसमें रिक्वेस्ट ये था कि इसमें जो कंप्लेंट एंडी बता रहे हैं इनका एफआईआर तो बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने लॉन्च किया है सर। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने कैश जमा सीज किया है तो अगर किसी को वापस करना हुआ तो फिर आप क्या प्रिंसिपल ही वापस करेंगे फिर, और क्या है? और उसका क्या मतलब निकलेगा? बैंक में रख दिया तो किसी को कोई नुकसान है क्या? पर पैसा तो अभी कैसे मिलेगा आपको? अंडर विच प्रोविजन? एंड हाउ मेनी कंप्लेनेंट्स आर देयर? हाउ मेनी अदर विक्टिम्स आर देयर? कितने लोग हैं टोटल जिनके साथ फ्रॉड किया है? 29. हाँ 29. तो बाद में आपको प्रो राटा बेसिस पे मिल जाएगा, और क्या? केस खत्म होने के बाद ट्रायल को भी डिसाइड करेगी इनका और ट्रायल कोर्ट भी क्या करेगी? वो कहेगी अपील की होने की दशा में अपील कोर्ट करेगी। बट मान लो जो इसके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो अगर उसके बयान पे आया है मान लो होगा ना कि भाई इनसे इतना है। आप कौन है? Lord, 47.3 में रिवीजन अगेंस्ट चार्ज माना, क्या है? रिवीजन अगेंस्ट चार्ज माना। चार्ज इसमें मुझे सिर्फ 27 मानो 27 के मेमो को एक्यूज बनाया है कि मेरी फर्म है बालाजी ट्रेड्स, उसमें एक मिनट है, पहले ये नेपाल 47.1 and 2 पे My lord, मैं वही नंबर रिक्वेस्ट this was the harding my lord 30,70,000 है तो but how it can be given to you only when there are other claimants also under which provision? दादी और प्रो राटा बेसिस पे इनको कुछ वापस मिल जाए मतलब ड्यूरिंग ये तो एफडी में रखवा देते हैं ना, कम से कम पैसा आपका सेफ रहेगा, इंटरेस्ट तो एक्टिव होगा उसके ऊपर। अदरवाइज अभी तो कुछ भी नहीं, और आपको कायदे से पहले ही कह देना था ये कि इसको जब तक ये रिवीजन डिसाइड नहीं होता तब तक उसको एफडी में रखा दीजिए। हाँ, कोर्ट कोई मना करती क्या आपको? लॉर्डशिप इसमें व्हाई डिडंट यू मेक दैट प्रेयर एट दैट टाइम? अब आप देखिए 2 साल का इंटरेस्ट आपका चला गया।
36 लाख रुपए तो उसमें मैं तो वकील की फीस निकाल आती हूँ। और ये तो वकील खुद बता रहे हैं कितने कितने है भाई, 29. 29 कंप्लेन। ये खुद ही बता रहे हैं कि 29 लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है। एफआईआर में किसने दर्ज कराई एफआईआर? एक सौरभ। एक साल में मैंने उनके साथ 2.5 लाख रुपए का ही फ्रॉड हुआ था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चला उसमें सब पूरा मालूम एडवाइजर Really 47.1 or 2 में these petitions have been filed. This is a division, this also governs the disposal for criminal division number 3788 of 22. As in both the cases, identical issues within the identical order has been challenged. The petition has been, for the sake of convenience, in fact narrated in criminal division number 3787, 3787 of 22 are been taken into consideration. And the defects of the case are bad. The petitioner herein was defrauded to the tune of rupees 30,70,000 on the pretext of providing higher returns. However, subsequently, even the principal amount was not returned by the FIR in the present case was filed by one. किसने फाइल की थी FIR? सौरभ मिश्र। Saurabh Mishra. And it has been, and during the course of investigation, it has been found that as many as कितने लोगों को fraud किया? 29 कंप्लेन। 29% have been defrauded. Their hard-earned money by the accused person. The present petitioner had filed an application for obtaining the money on security. The apportioned amount on security, which has been rejected. ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था Yes, Your Lordship, only on the ground की विवेचना जारी है अभी. on the ground that the investigation is still going on, whereas the original court ने same ground, जी, revisional court ने सर सेशन से ही हुआ है. अच्छा सेशन कोर्ट revision तो यहीं पर है. That Mohandas counsel has submitted that the amount involved in the case of the present petitioner is a hard-earned money. He is refunded to him. The counsel for the state has opposed the claim, submitted that there are as many as 29 complainants, and at this juncture, the amount cannot be given to the petitioner, as there are many other claimants also who have also been defrauded. On a query made by this court, counsel has submitted that the entire amount of rupees कितना 30 लाख कितना रुपए है कैश में? More than 36 lakhs as of now. Exact amount बताइए. एक्सेप्ट अमाउंट तो मान लो जिनने जो जोड़ा है वो 34,90,600 34,90,600. इसमें अलग जो एक सोने की चेन वगैरह और वो अलग है ना? वो अलग जोड़ के फिर टोटल अच्छा कैश तो इतना है 35. केस On due consumption, perusal of the case diary, the total of the considered opinion that no case for interference at this stage is made out. The trial is still going on, and there are many claimants. In such circumstances, petitioner cannot be given preference over and above the other claimants. And the amount can be given only after the trial is completed by the trial court. And you have the same, the litigant is thereby dismissed, however, with liberty to petitioner to claim the appropriate amount from the trial court itself.
at the conclusion of the trial. It is also found that as the money seized from the accused person, a cash of rupees so and so was lying in the Malkhana of the police station. They are direct police, concerned police station. कौन सा police station? Now, Raut is directed to the judge of the trial court is directed to ensure that the apported amount is kept in a fixed deposit at the earliest, preferably within 2 weeks' time, by issuing appropriate direction to the concerned police station. Can some will be deposited? Accruing highest interest in a national. ठीक. my lord, liberty will kindly be given to move appropriate application under Madhya Pradesh निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम लॉर्डशिप for attachment of property your lordship. Actually अभी Attachment of property of accused. yes your lordship. वो तो है ही ना आपको अधिकार उसमें अभी इसमें आपको ऑर्डर में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आ गया तो ट्रायल कोर्ट वैसे नहीं वो तो अमाउंट के बारे में आएगा कल अभी तो आपको केवल उसके बारे में है ना कैश के लिए है लॉर्डशिप वो तो यू हैव अदर राइट needless to say the complainant shall be allowed to raise all such grounds before and file such applications which are which they are entitled to under law. मतलब 47.1 हो गया 0.2 हो गया और 47 भी हो गया ना अब क्या बचा है 47.3 3 होगा। इसमें एक्यूज अनिल यादव की तरफ से फाइल है रिवीजन अगेंस्ट चार्ज। इसमें जो मुझे इम्प्लीकेट किया है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में मेमो का इसमें 4568 ना मानो क्या किया है इसमें जो इम्प्लीकेट किया है मुझे उसमें मेमो है 27 का। उसमें एलिगेशन ये है कि जो कोई एक्यूज यज्ञदत्त मोहनलाल शर्मा उन्होंने मुझे बोला कि पवन तिवारी की एडवाइजरी कंपनी है उसमें पैसा आता है तो आप अपने करंट अकाउंट में जमा करें। मेरी जो फर्म का नाम है बालाजी ट्रेडर्स बट बैंक से स्टेटमेंट भी पुलिस ने सीज किया है पर उसमें कहीं भी ना तो किसी एक्यूज के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया है ना किसी कंप्लेंट का है कोई एविडेंस नहीं है। तो चार्ज में भी मेरी फर्म का नाम नहीं वाला। काइंडली सी एनेक्चर A2 पेज 25 अनिल पिता हरदयाल सिंह मालूम वन चार्ज में आपने दिनांक 10/2/2022 से दिनांक 15/4/2022 के मध्य की समय अवधि में आरक्षी केंद्र राहू जिला इंदौर के अंतर्गत 6 आरोपीगण के साथ मिलकर प्रतिरूपण के द्वारा छल जो अवैध कार्य कारित करने हेतु सहमत होकर आपराधिक शरण किया और उक्त अवैध कार्य के अनुसरण में आपने या आपके सह आरोपीगण में से किसी ने सौरभ मिश्रा, अरशद खान, सुनील वाहन निवेशकों को श्री दादाजी ट्रेडर्स, निजी कंसल्टेंट कंपनी, प्रखरजी कंसल्ट और RR रिसर्च ये 4 के नाम है के बैंक अकाउंट में राशि निवेश कर अधिक राशि वापस करने का प्रलोभन देते हुए निवेशक गण को राशि निवेश करने हेतु उन्हें अलग अलग नामों से फोन कॉल का प्रतिरूपण किया। इसमें बालाजी ट्रेडर्स जो मेरी फर्म उसका नाम नहीं है और मेरे अकाउंट फर्म के अकाउंट में कोई पैसा आया कहीं भी कोई एविडेंस सिर्फ 27 के बाद और 19,000 रुपये मैंने सी और चार्ज भी इस टाइप का आपने किया होगा या आपके साथ वालों ने किसी ने किया होगा। एग्जैक्टली ये नहीं कि मैंने किया है या मेरे खिलाफ कोई एविडेंस। और जो अकाउंट जिस गया है पेमेंट जो इस अकाउंट में गया है वो 4 नाम दादाजी ट्रेडर्स, निजी कंसल्टेंट कंपनी, प्रखरजी कंसल्ट और RR रिसर्च। ये निजी कंसल्टेंट कंपनी का नाम है मालूम या दादाजी ट्रेडर्स को ये निजी कंसल्टेंट कंपनी बता रहा है मैं भी पॉसिबल अलग लिखा हुआ है इस तरह से दादाजी ट्रेडर्स फिर निजी कंसल्टेंट हो सकता है वही दादाजी ट्रेडर्स निजी कंसल्टेंट कंपनी 3 कंपनी हो गई प्रखरजी कंसल्ट एंड RR रिसर्च 3 होंगी अब 3 हो गई। क्या कहना है इसके मेमो पे ये आया है मानो कि इसको 5% मुनाफा मिलता है। इसने इसका मेमो पे ये आया है मतलब कि मैं सोचा था वो खत्म करता हूँ तो 1.5 साल पूर्व मेरे दोस्त ये जो एक जिसने इसने बोला था मतलब यज्ञदत्त शर्मा मालूम उसने इसने बोला था कि 5% मुनाफा वो देगा। ये यज्ञदत्त शर्मा के मेमो पे आया है। ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट का जो मेमो है मालूम उसमें ये आया था कि
इसको इसको 2% कमीशन मिलता था, और ये जिसने इनके खाते में डलवाए थे, जो फर्जी खाता खुलवाया था मैंने, वो 5% कमाता था और इसको 2% मिलता। ये इसके मेमो पे आया है। इसका मेमो नहीं तो इसने किसका खाता खुलवाया? इसमें माय लॉर्ड ये जो है इसका तो इसका क्या बालाजी बता? बालाजी ट्रेडर्स का। तो बालाजी के नाम से तो कोई खाता है ही नहीं ना। उसमें उसमें 22 लाख रुपए आए हैं माय लॉर्ड। नहीं, ये बोल 22 रहे हैं लाख। बालाजी के नाम से कोई खाता नहीं। नहीं, अनिल अनिल के जो है, अनिल के खाते में ही आए हैं माय लॉर्ड। उनके खाते में आए सर 22 लाख के समथिंग सेंस। इसमें आया, मैं सुरक्षा को खत्म करता हूँ कि आज से 6-7 महीना पहले मुझे यज्ञदत्त मोहन शर्मा निवासी राव का मुझे मुझे मिला और मुझे बोला कि एक एडवाइजरी कंपनी पवन तिवारी की है जिसमें काफी पैसा आता है, जो पैसा आएगा उसका 2% कमीशन आपको मिलेगा। हमें इनकम टैक्स बचाना है, इस कारण मैंने करंट अकाउंट नंबर चाहिए। मैं यज्ञदत्त शर्मा की बातों में आ गया और अपने बालाजी ट्रेडर्स के नाम से एक एक्सिस बैंक खाता भवनकुआ में करंट खाता खुलवाया, जिसमें प्रोप्राइटर मैं स्वयं हूँ। तो अलका यादव भाभी निवासी स्वर्ण तथा वंश ट्रेडर्स नीलम का लड़का, चारों खाते खुलवाए। मेरा करंट खाता बालाजी ट्रेडर ने कुल 22 लाख रुपए आए, अलका यादव के खाते में 25 लाख रुपए आए और नीलम यादव के खाते में 15-17 लाख रुपए, तो वंश ट्रेडर के खाते में 15-17 लाख रुपए को मैं एटीएम व चेक के माध्यम से केस निकालकर यज्ञ ये किसका किसका स्टेटमेंट पड़ रहा है? ये माय लॉर्ड प्रेजेंट अनिल का। अनिल का ही पड़ रहा है। यस मैम, और इसके खाते में पैसे भी आए, मैंने तो चीज भी हुई। पैसे कहाँ से आए? वो ना तो किसी एक्यूज ने जमा करे हैं, ना किसी कंप्लेंट ने जमा करे हैं। वो तो फिर पता आपने ना। बताया ना एक्सीडेंट की कहाँ से आया? नहीं, मेरे तो बिजनेस है मालिक, मेरे उसमें तो आते रहते हैं। तो 22 लाख रुपए एग्जैक्ट पूरे बता रहे हैं कि 22 लाख रुपए आए। बस चार्ज के लिए एविडेंस तो हो कि मेरे अकाउंट में किसी कंप्लेंट ने जमा करे या किसी एक्यूज ने जमा करे। बैंक स्टेटमेंट इज देयर मालूम, उसमें कोई एंट्री नहीं है किसी भी अकाउंट से। नहीं, आपको नीचे ही लड़ेगी उससे। बराबर। Technically looking to the fact that in the account of the present applicant कितना अमाउंट आ गया? और मैं काइंडली बैठ रहा हूँ। Dismiss as withdrawn. 47.4 admin council not available. Custody of mobile का कैसे? क्या है ये? Custody of mobile not मोबाइल के बारे में क्या कहना है? माय लॉर्ड इनका जो है मोबाइल फॉरेंसिक लैब के लिए पहुंचा है, और माय लॉर्ड इनके इसमें भी इनको माय लॉर्ड ये एक्यूज है इसमें, और इनको नीचे से ट्रायल कोर्ट ने कुछ अमाउंट इनको दे दी, जो सीज किया था अमाउंट वो इनको दे दिया मैंने। तो उसमें आपने क्या किया फिर? उसके लिए माय लॉर्ड हम अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें। कितना अमाउंट दिया? 2 लाख तो कुछ और अभी ये मोबाइल भी मांग रहे हैं? क्या छुपा रहे हो? अब ये मोबाइल भी छुपा रहे हो। ये मोबाइल तो नहीं मिल सकता। और That would मोबाइल- be प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस। तो मान लो उसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगाएंगे, क्योंकि इनको 3,40,000 रुपए तो पैसे दिए हैं। एक विशाल को मान लो और एक प्रकाश भट्ट को, इन दोनों को ये अनुराग के बारे में बात कर रहे हैं। अनुराग नहीं प्रकाश बात तो मैं हूँ सर, ये पॉइंट प्रकाश भट्ट। पॉइंट 5 पर नहीं। प्रकाश भट्ट में? यस मान लो जो नहीं, ये तो नहीं बता बिल्कुल। मोबाइल दे लिखिए, दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड फॉर अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो द whereby the petitioner's application to obtain the mobile phones. कितने मोबाइल थे? एक ही मोबाइल है। Mobile phone also could be has been rejected, considering the fact that the wooden mobile was also used in the crime, the primary evidence. No case for entry was made out. That's meant. मेरे वाले में सर Obliged. इसमें भी सेम मोबाइल है और खाता भी डिफ्रीज करने की एप्लीकेशन है। मोबाइल, चलिए मोबाइल का तो खत्म कर दें, खाते के बारे में क्या कहना है? हाँ खाता तो ये, कितना अमाउंट है इस खाते में? और मेरे इसमें कुछ आया भी नहीं था कि तो आपको अभी खाते का क्या करेंगे आप? सर वो ट्रांजैक्शन किसके, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन होता है। तो अभी जमानत मिल गई आपको? हाँ जमानत तो एंटीसिपेटरी बाय द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ। खाते में कितना अमाउंट था? तो सर वो मेरे को जानकारी नहीं मिल सकती। क्या कहना है? बट इनके खाते में जो आए हैं मान लो इसके बचे वो 26,000 रुपए आए हैं मान लो। 46841 46841। जी सर। इंपिंग ऑर्डर में भी राशि के बारे में नहीं लिखा है सर कुछ। आपकी अर्जी कहाँ है? ट्रायल कोर्ट में फाइल की? जी सर। नीचे ट्रायल कोर्ट में जो अर्जी फाइल की थी आपने? हाँ उसका ऑर्डर है। अरे ऑर्डर नहीं, अर्जी नहीं है। अर्जी नहीं है सर, ऑर्डर पूरा पूरा डिटेल ऑर्डर सर, पेज नंबर 4 से स्टार्ट है, 4, 5, 6, 7, 8 लंबा ऑर्डर है, डिटेल ऑर्डर।
हाँ, ये 26/8 से स्टार्ट हुआ है। सीजन 26 ये मोबाइल में बैंक खातों के बारे में कहाँ लिखा है? बैंक खाता डीफ्रीजिंग, डिफ्रीज तो उसमें क्या आपत्ति है भाई आपको? सर हमारे कंप्लीमेंट की जो अमाउंट आया सर वो रहेगा तो सर सर मोबाइल का भी एक शॉर्ट रिक्वेस्ट था सर मेरा, एक आप देखेंगे इंप्रिंट ऑर्डर में कि ये लैब पर गया हुआ था, तो अभी तक तो मेरे हिसाब से ये बता आ भी गया वो तो अभी तो नहीं होता। उसके लिए तो फिर मैं उठते पुरते विड्रॉ कर लेता हूँ एट एप्रोप्रिएट। बाकी डिफ्रीज करने में तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अमाउंट था, जो अगर किसी कंप्लेनेंट का मेरे खाते में आया नहीं तो ये वैसे खारिज भी नहीं किया है, ट्रायल कोर्ट ने खारिज कहाँ किया संबंध में तो बैंक की स्पष्ट आरक्षी केंद्र, जानकारी। हाँ, अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत दिनांक पर आवश्यक रूप से उक्त बैंक खातों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मैं प्रतिवेदन व केस डायरी प्रस्तुत की। पर वो डिफ्रीज भी नहीं हुआ। नहीं तो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर पास करना था ना, अभी तो कोई ऑर्डर है ही नहीं आपके खिलाफ, हाँ, पर वो डिफ्रीज भी नहीं हुआ है इसलिए तो वो तो उसके लिए ऑर्डर लीजिए, उसके लिए तो फिर सेपरेट फाइल ट्रायल कोर्ट को इसे डायरेक्ट कर दे। dismissed as withdrawn. So, डिफ्रीज council has तो फिर वो ट्रायल with liberty to the council to apply before the trial court for defreezing of the account, which shall be decided in accordance with law. ठीक बोले जी। application for relaxing the condition which has been imposed in the bail. In identical circumstances, the co-accused already been granted the benefit manner. This is the order of the coordinate क्या bench. करना है इसमें? My lord, I have pray for a waiving of the condition imposed